ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸਐਮਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਅਤੇ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਢੋਲ ਅਤੇ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਅਤੇ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਣਿਤੀ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪ੍ਰਣਿਤੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਢੋਲ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜੋ ਬਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। जी, बात ऐसी है कि मैं मतलब मीडिया के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे जो मेरी बहू ने आने के लिए मजबूर किया कि मैं भी अपना पक्ष रखूँ, क्योंकि मेरे बारे में जो इन्होंने गलत-सलत मीडिया में बोला है, उससे मैं बहुत आहत हुआ हूँ। इनको मतलब मेरे बेटे का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए था, उसकी लोकेशन, नाम वगैरह नहीं लिखना चाहिए था, वो इन्होंने लिखवाया है, दैनिक भास्कर मैंने देखा है। तो इनका जो है हमेशा से मतलब हमको मतलब इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे कि हम कुछ भी नहीं हैं, और मतलब जो भी है मतलब हम कहें वैसे करो। मेरे बेटे को मतलब अभी हमारा इनका तलाक हुआ, मैं नहीं चाहता था कि मतलब कहीं भी जाए बात, चुपचाप मैं वहाँ से निकल आया, लेकिन इन्होंने ढोल नगाड़े बजाए। बजाओ, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, आप खूब बजाओ। लेकिन कम से कम मेरी बदनामी तो मत करो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या प्रताड़ना की, क्या कुछ भी नहीं किया। हमने हमेशा उसको बेटी की तरह माना। कभी भी उसको मैंने नाम तक नहीं लिया, उसका मतलब बहू नहीं बोला, कोई मैंने बेटी ही बोला उसको, बेटा ही बोला है। लेकिन जो इन्होंने किया हमारे साथ वो अच्छा नहीं है, और मेरा बेटा जो है वो बहुत डिप्रेशन में है, बच्चे की वजह से उसका बच्चा छीन लिया गया, उसका मिलने का हक छीन लिया गया। और इन्होंने जो इस तरीके का मतलब पूरे मीडिया में फैला करके पूरे देश में मेरे पास कॉल आ रहे हैं, इतनी बदनामी हुई है, क्योंकि मैं भी फ़ौज से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार मेजर से, मेरा बेटा छोटा भी है, वो भी फ़ौज में है। तो इस तरीके से मतलब इस फ़ौज की बदनामी करना, मेरी बदनामी नहीं है तो फ़ौज की, पूरी फ़ौज की बदनामी है। इनको ये सोचना चाहिए, ठीक है हमारा नहीं बन रहा था, तो तलाक हो गया। तुम्हारी क्या मंशा थी वो तो तुमने खुद जानते हो। तुमने मेरे बेटे पोते को ले लिया, मुझसे छीन लिया, मेरे दादा-दादी का हक मिलने का छीन लिया। तो हमको बहुत बुरा लगता है। बात ये हुई कि ये लड़का मेरा गया था, इसको छोड़ के आया था वाइफ़ को अपने घर पे उनके मायके में। तो वहाँ पर इन्होंने मेरे बेटे से पूछे, मेरे बिना पूछे मुंडन करा दिया लड़के का, बच्चे का, मेरे पोते का। तो इनको बोला गया कि भाई तुम ये सब क्यों कराया तुमने? तो बोला कराया क्या? तो करा दिया तो करा दिया, तुम तलाक लेना तलाक ले लो। तो ये सब काम हमारा था, मुंडन कराना, मेरे परिवार का, मेरे वंश का वो लड़का बच्चा है, हमारे संस्कारों से उसका होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती कराया। जब इनको ब बात किया तो बोला ठीक है तलाक ले लो और जाओ, यहाँ से निकलो। मेरे बेटे की गाड़ी 6 महीने से रोक रखी थी, गाड़ी नहीं देंगे, जब तक तलाक नहीं लोगे गाड़ी नहीं देंगे। जैसे-तैसे बोल-बाल के इन्होंने, हमने फिर मीडिएटर लगाया, भाई जैसे-तैसे हमारा कुछ करा दो। हमें डर था क्योंकि मुझे झूठे मुकद्दमे फँसाएँगे। 2019 में भी इन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के, मेरी वाइफ़, मेरे सब पूरे घर के खिलाफ मुकदमा किया, एफआईआर कराई, और वहाँ से दिल्ली से भी एक केस डाला, इलाहाबाद से भी एक केस डाला।
इस वजह से बहुत आहत हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतना आहत हूँ कि मैं अपनी आत्मा की बात आपको पूरी बता भी नहीं पा रहा हूँ कि कैसे-कैसे मेरे साथ क्या हुआ। अब इन्होंने जब मेरा पूरा बदनामी किया, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा मीडिया के सामने कि ये जो कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है और हमेशा उसको अच्छे तरीके से रखा है। मेरी वाइफ़ ने उसकी सेवा की, इन्होंने मुझे 1 गिलास पानी नहीं उठा के दिया, लेकिन मेरी वाइफ़ ने इनका जब भी इनको दुःख ऑपरेशन हुआ, जब भी बच्चा पैदा हुआ, तो इनका मालिश भी किया, इनका कपड़े भी धोए, इनका सब कुछ काम किया एक माँ के जैसे। फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारे सास-ससुर ने और हमारे पति ने प्रताड़ना दी है। जब फ़ौज में अनुशासन होता है, फ़ौज में मतलब हर आदमी अनुशासित है, चाहे तो सिपाही हो, चाहे अफ़सर हो, कोई भी हो। तो ये कैसे कह सकते हैं प्रताड़ना, यहाँ तो अगर कुछ भी कहेंगे तुरंत पहुँचती है खबर यूनिट में, भई ऐसे कैसे हो रहा है? तो हम वो बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब इनकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी एलिगेशन लगाएँ, तो मैं इसीलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि हमारी भी पक्ष रखा जाए और ये झूठे आरोपों से मुझे हटाया जाए। मैं बहुत आहत हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा बच्चा डिप्रेशन में, मेरी वाइफ़, सब हम लोग डिप्रेशन में हैं कि क्या हो। दूसरा बात, इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था कि कोई भी हम एक-दूसरे के खिलाफ सामाजिक स्तर पे कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी छवि को या इनकी छवि को हानि हो। इन्होंने पहले ही उसका वायलेंट कर दिया एग्रीमेंट का, तो इनको नहीं करना चाहिए था। जब हम बिल्कुल चुपचाप कोर्ट से चले आए थे तलाक होने के बाद, तो इन्होंने ढोल नगाड़े बजाए, ठीक है ढोल नगाड़े बजाओ। लेकिन वो जो एग्रीमेंट में लिखा था वो इन्होंने क्यों किया वायलेंट, उसका कि सामाजिक असर, इससे कितना मेरे समाज का मुझ पे असर पड़ा है, वो सिर्फ़ मेरी आत्मा जानती है, मैं आहत हूँ, बस यही कहना ये एक तो हम मीडिया के सामने आना नहीं चाहते थे। हमें अपने घर की, परिवार की बात पब्लिश नहीं करनी थी। नहीं अच्छा लगता है हमें, लेकिन हमारे हमेशा मजबूरी में सब करना पड़ रहा है कि इन लोगों ने पहले किया। मेरे समधी और इन समझे। और रही तलाक की बात, तो ये लोग हम इनके साथ हम हमेशा एडजस्ट करते रहे और अभी हमारा पोता हुआ है, तब से इन लोगों ने मेरे साथ कुछ ज़्यादा ज़्यादती करनी शुरू कर दी, ताकि ये बच्चे को छोड़ दें। कैसे-कैसे करके लड़ाई झगड़ा करके और ब्लेम करके बच्चे को छोड़ दें, हमसे दूरियाँ किसी न किसी तरीके से बना लें, ताकि हमें बच्चा मिल जाए। क्योंकि इनका बेटा मर गया था अभी तकरीबन 4-5 साल पहले, तो उसके चक्कर में ये उसको हमारे पोते को लेने के लिए इन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा और मेरी बहू को भी इन्होंने प्रेशर डाला कि कैसे करके तू लड़ाई करके ये सब कर। नहीं तो हम ये सब क्या करते, हमें ये जो ये डिवोर्स हुआ है, हमें कोई खुशी नहीं है। कोई अपने बेटे की शादी डिवोर्स के लिए नहीं करता, पर इन लोगों के फैशन में है ये चीज़ें। और हम क्या बताएँ कि हम तो बहुत अंदर से दुखी हैं, आत्मा खोल के नहीं दिखा सकते। और मेरे पोता जो है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? माँ-बाप को दोनों को अलग करके, क्या ये उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं क्या? कि जब उसको पता चले मेरा पापा है, मेरा परिवार है, नहीं मिल रहा है, तो उसके दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा? ये क्या उसके लिए अच्छा करेंगे, क्या सोचेंगे? अभी हम बूढ़े हो गए, तभी हमें अपने माँ-बाप की दोनों की ज़रूरत है। वो तो बच्चा है, आगे चल के उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा? ए एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी बहू को कभी बहू नहीं माना, बेटी करके ही माना। क्योंकि मेरी बेटी नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है, दूसरे की बेटी को भी मैं अपना गले से लगाती हूँ, उसको जो बन पड़ता है उसके साथ मैं करती हूँ, खिलाना-पिलाना जो भी अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। बहू को कौन नहीं मानेगा अपनी बेटी, एक बताओ? हमारी बहू ने कभी हमें माना ही नहीं, हमें कभी इज़्ज़त ही नहीं दी हम लोगों को, कि वो ये लोग पैसे से तोलते हैं इंसान को। और अगर हमने ₹2 दिए तो उन्होंने ₹4 दिए, इसलिए हमारे बहू को भी इन्होंने मतलब दिमाग से ऐसा कर दिया ना कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो उस तरह से उसने मेरी हम लोगों में वैल्यू भी नहीं की, नीचा ही दिखाने की कोशिश करी। और लेके इनके पापा वकील, भाई वकील, पिता जज, उस चक्कर में इन पूरे परिवार ने हम पे इतना प्रेशर डाला ना कि एकदम डर के साए में हमेशा इनके साथ इतने दिन गुज़ारने पड़ गए। फिर भी हमने सोचा हमारे बेटे का परिवार बना रहे और ना उन्हें हम अपने बेटे के लिए, बेटे की खुशी के लिए इनके हर अत्याचार सहते रहे। और लास्ट में जब इनका मौका लगा तो इन्होंने ऐसी रचना रची कि हमारे पोते से हमें अलग किया, बाप को बेटे से अलग किया, बेटे को बाप से अलग किया। इसका क्या असर पड़ेगा? और दूसरी बात, हमारे बेटे का इन्होंने फ़ोटो और लोकेशन, नाम क्यों पब्लिश किया? हमारे बेटे ने तो कुछ बोला ही नहीं मीडिया पे। वो तो एक अलग चीज़ है ना, फ़ौज एक आर्मी हमारे पूरे देश की रक्षा करती है। अगर उसके खिलाफ हम जाएँ तो उस देश के साथ गद्दारी भी है। और बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा करेगा। हमने तन मन धन से सेवा करी अपनी बहू की। उसके जब भी बुरे वक़्त में हुए तो ये लोग कोई नहीं आए, हम ही खड़े हुए उसके।
पैर का ऑपरेशन हुआ हो, बच्चा हुआ हो, ऐसे बीमार पड़ी हो, ऐसे टाइम पे हमें ही बुलाया गया और हम ही गए। जब मैं सेवा का टाइम आता हम ही गए। क्यों गए? हम अपने बेटे की खुशी के लिए गए, बेटे का परिवार सुरक्षित रहे, सब ठीक रहे। मैंने अपने घर के, अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के इनकी सेवा करी, अपनी बहू की। एक मेरे दूसरे बेटे का हाथ का ऑपरेशन हुआ था, तब भी दूसरे दिन ही, आज ऑपरेशन होके आया मेरे बेटे का, तो तीसरे दिन इनका फ़ोन आया, मेरे बेटे का और बहू का, कि आ जाओ, कि डिलीवरी के टाइम। डिलीवरी 1 महीने बाद हुई। हमने बोला अभी कि मतलब अभी टाइम नहीं है, डेट दी है, इतने दिन बाद हम आ जाएँगे। और वो बेटा मेरा दूसरा भी फ़ौज में है, तो उसने वो रोया बहुत कि मम्मी मैं साथ चल लूँ, मैं भी अफ़सर मैस में मेरा एक रूम करा दो, हम पैसे दे देंगे, कहीं भी रुक लेंगे, मुझे साथ ले चलो। मेरी बहू ने मना कर दिया कि नहीं उसको नहीं लाना, तब तो मत आओ। और मेरे बेटे को प्रेशर डालने लग गई, तब तो रहने दो। क्या कोई अपने परिवार के साथ ऐसा करता है?